اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، مراد علی شاہ نیب آفس کے باہر گفتگو کر رہے ہیں۔ میونسپلٹیز ہیں اور ٹاؤن کمیٹیز، اس میں ایک اسکیم اپروو کی تھی سولر لائٹس لگانے کی، اس کی انکوائری تھی اور میں اس وقت صوبے کا وزیر خزانہ تھا، تو مجھے اس اسکیم کی اپروول پروسیس کے بارے میں جو وضاحت ہونی چاہیے تھی اس سلسلے میں بلایا تھا۔ جو ان کے سوالات تھے ان کے جواب دیے۔ ان کے سوالات بیسیکلی ان کو بتایا کہ سوال پرائمرلی یہ تھا کہ جی اس سال یہ اسکیم تھی نہیں، آپ نے بعد میں بجٹ میں لائے اور اس کی آؤٹ سائڈ بجٹ فائنینسنگ اپروو کی چیف منسٹر صاحب نے اس وقت، اور آپ نے ان کو سجیسٹ کیا فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، تو بالکل جی وہ کیا اور ان کو بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 124 ہے 124 جو پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز اپروو نہیں ہو، بجٹ میں شامل نہیں ہو اور سال کے دوران، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ ایمرجنسی ہو تو آپ نے کرنی ہے، سال کے دوران کوئی اسکیم حکومت سمجھتی ہے اس کو فنڈ کرنا ہے تو اس کی بجٹ سے باہر اجازت دی جا سکتی ہے، تو اس کو آئین کے آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اجازت دی گئی۔ اور آگے اس میں ایک بائنڈنگ بھی ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت جو بھی ایسی آؤٹ سائڈ بجٹ ایکسپینڈیچر کرے اس کو اسمبلی سے اپروو کرائے۔ ہم نے اس کو اسمبلی سے بھی اپروو کرایا تھا، تو سارے جو قانونی اور آئینی نکات تھے وہ ہم نے پورے کیے۔ میرا رول اس حد تک تھا اور میں نے اس حد تک نیب کے سوالات کے جواب دیے اور کوشش کی ہے کہ جو آئینی حقیقت ہے ان سے ان کو آگاہ کریں۔ سوال نامہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے مویشی منڈی لگی ہے جس میں سب سے پہلے سوال نامے کی آپ نے بات کی، سوال نامہ مجھے ابھی دیا نہیں ہے لیکن مجھے کہا ہے کہ ہم سوال نامہ بھیجیں گے آپ کو، تو وہ آ جائے گا تو میں جواب دے دوں گا۔ وہ دے رہے تھے سوال نامہ لیکن اس میں شاید انہوں نے کچھ چینج کرنی تھی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیج دیں گے، میں نے کہا جی بالکل۔ میں دوسرا سوال جو آپ نے کیا یہ میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری ہے، یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس وقت جو وبا سے پوری دنیا اور ہمارا ملک مبتلا ہے جس آزمائش سے، میرا پرسنل خیال، اور یہ میں نے نیب کے عملداروں کو جو انہوں نے کہا تھا یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ جی آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ نے بتایا مویشی منڈی کا، نہ صرف یہاں بلکہ کئی جگہوں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، اور میں اس کا جو الزام لوگوں کو نہیں دوں گا۔ میں ختم کر لوں، میں لوگوں کو اس لیے نہیں دوں گا کہ جس طریقے کے مکسڈ میسیجز گئے ہیں اس وبا کے بارے میں، کہ آپ ہیں یا میں ہوں، مجھے اگر ایک شخص کہتا ہے یہ بہت خطرناک ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ فلو ہے کچھ نہیں ہوگا تم بچ جاؤ گے، زکام ہوگا بخار ہوگا تم بچ جاؤ گے، اور مجھے پتہ ہے اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں لوگوں کو اپنی کرنی ہے، لیکن جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے ہم سو کالڈ بڑے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے پریشان ہونا، لیکن اس غریب کے گھر میں جو ایک کمانے والا ہے اگر وہ دیہڑی دار ہے، وہ 1000 روپیہ روزانہ یا 500 روپیہ روزانہ لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اگر اس وبا کی وجہ سے اس 500 روپے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو ان بچوں کو ساری زندگی، وہ دیہڑی دار تو ساری زندگی کے لیے ان کی گئی نا، اور ایک پیارے کی موت سے جو غرض ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا یہ ایس او پیز فالو نہیں کرنا، میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے۔ آپ نے خیال، میں تو ادھر بھی بڑا ڈر کے میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں کراچی سے آئی ہوں، کراچی میں بہت زیادہ وبا، لیکن شاید آپ کو ہو سکتا ہے پتہ ہو، میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وبا، پر کیپٹا ڈیتھس اور پر کیپٹا انفیکشنز اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہ اسلام آباد ہر ایک کو جان پیاری ہے، تو یہ اپارٹ فرام یہ نیب ویب کی انکوائری بڑا اچھا موقع مجھے مل گیا۔ نارملی میں کوشش کرتا ہوں لیکن آپ سب دوست آگے تھے تو میں نے کہا بات کرنا ضروری ہے۔
तो मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये मैसेज ये नैब का छोड़ दें, भूल जाएं। मैंने क्या जवाब दिए, जो करना है जो होना है वो। वबा के ऊपर ये मैसेज मेरी तरफ से दोबारा जाना चाहिए कि ये सीरियस है। अभी आज की मुझे, इसलिए कि मैं पिछले 2 घंटे से अंदर था, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है। कल हमारे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस आई थी और आज मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा आई होंगी। अभी तक रिजल्ट नंबर्स आगे होंगे, NCOC ने दे दिए होंगे। सबसे ज़्यादा नंबर्स आए हैं और डेथ्स भी जा रही हैं। इसको सीरियस लें जी। सारी जो इस वक्त कन्वर्सेशन है और सारी मीटिंग्स चल रही हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, चाहे DOC की हो चाहे तो रास्ते हो सकते हैं। तो ये सवाल जवाब नहीं हो सकते आपको दूसरे से यहाँ बताया जाता है कि आइए और आके हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मैं एक अर्ज़ करूं, आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, इसमें आप लोगों का कसूर है। मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मीडिया का। कल से एक डे मैं अगर उनसे कहूँ कि मुझसे लेने फिर कहीं आने से इनकार कर दिया, अब नैब गिरफ्तार कर लेगी, अब फलाना हो जाएगा। आप लोग भी, मैंने तो कई बार मीडिया वालों से हाथ जोड़ के कहा है कि यार ये मुझे नहीं कवर करते आप, ये आज कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने मुझसे पूछना है, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल रहा है। 26 फरवरी से मैं इस पेंडेमिक के ऊपर काम कर रहा हूँ। जब फेडरल गवर्नमेंट भी करती है तो सबसे पहले मुझसे ओपिनियन इसीलिए लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ है। एक्सपीरियंस मुझे को ऑब्वियसली मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैंने हर काम डॉक्टर्स, WHO जो रेलिवेंट लोग हैं उनकी मशावरत से किया है। मैंने मीडिया से भी ये कहा कि यार बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ इस पेंडेमिक पे करो, कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, ये हमारी जानें बचेंगी। आप शुरू से कह रहे थे कि लॉकडाउन को बंद करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम उसकी मुखातब कर रही थी। अब जो ये एकदम हाइप आई है इसमें और इस पर 100 जो पहले मरीज आ रहे थे और जो अब आ रहे हैं उसके रेशो में भी बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। क्या ये फेडरल गवर्नमेंट को सवैया की वजह से है? नंबर 1। दूसरा, अब नैब अचानक एक्टिव नजर आई है पिछले 2-3 दिनों में, आप लोगों के खिलाफ इसकी क्या वजह है? देखिए, इससे पहला तो वो पेंडेमिक का आपने सवाल किया, बहुत आपका सही सवाल है। हम सब ने मिलके इस पे फैसला करना है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से यही कहा था कि हम किसी जजीरे में, सिंध कोई जजीरा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के हर शहरी को सिंध आने के लिए आपको ना वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने पूरे मुल्क का सोच के और एक यूनिफाइड स्टांस लेना है, तभी हम इससे बच सकेंगे। हाँ, हमें जो फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है, करना चाहिए था, और ये मैंने 13 मार्च को प्रपोज़ किया था कि अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर दें और जो बाहर पाकिस्तानी हैं जो मुश्किल में, उनको लेके आएँ, लेकिन उनको प्रॉपर क्वारंटीन और उनका प्रॉपर इलाज और उसके बाद उनको आने दें। ये नहीं माना गया और वो चीज़ काफ़ी अप्रैल में जाके इस पर अमल दरामद हुआ कुछ, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमें एक यूनिफाइड स्टैंड लेना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। और आपने जो नैब का सवाल किया, मेरा ख्याल है तो सिल्वर लाइनिंग और जो मेरे फ़ायदा आज हुआ है इस चीज़ से, नैब के सवाल जवाब होते रहेंगे कि मुझे आप दोस्तों से और इस्लामाबाद वालों से मुलाकात की एक मौका मिल गया है। आखिरी सवाल कर लें। यही सवाल के शहबाज शरीफ साहब कल नैब में पेश नहीं हुए, आप यहाँ पे पेश हो गए और लॉकडाउन के आप सख्त हामी थे कि लॉकडाउन होना चाहिए। फाइनली आपने वज़ीर आज़म की बात मान ली, तो क्या आपको प्रेशर दिया गया है कि नैब में आए और लॉकडाउन भी का माने? नहीं, इस पर ऐसे प्रेशर में मैं अपने, इस प्रेशर में नैब में 100 बार बुलाएं, इस प्रेशर में नहीं आते। मैंने जब बुलाया गया था तो अपीयर होना था, इसलिए हाइप इतनी क्रिएट हो जाती। मैं इनके डर से नहीं, आपके डर से आया हूँ। एक सवाल छोटा, मैं इनके डर से नहीं आया हूँ कि आप लोग जो फिर शुरू कर देते ना तो उस डर से मैं आया हूँ इधर कि सामने हाजिर हो जाऊँ कि अब बस गिरफ्तार होने वाला है, ये होने वाला है। आप लोगों से डरते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। जी ये बताइएगा कि आप फेडरल गवर्नमेंट से इन टच भी हैं, आपसे मुशावरत भी होती है, मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं, कितनी ज़्यादा सीरियस लगती है इमरान खान साहब आपको, कितने ज़्यादा ज़ाती तौर पर सीरियस लगते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वो पोजीशन चेंज करते आए हैं, आपकी कंसिस्टेंट पोजीशन थी। इसी में सिंध की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो आपकी जानिब से फौरी तौर पर जवाब आ जाता, तो ये मैं आप भी कर लें, चलें। हुकूमत पंजाब में जो बड़ी मार्केट है वो बंद करने जा रही है और फैसलाबाद
मैं दोनों पहले जो आपने जवाब दिया, मैं किसी के ज़ाती मेरा एक आईनी हैसियत है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अपनी ज़ाती राय नहीं देना चाहूँगा। आपको पर्सनली तो दे सकता हूँ, बट मीडिया पे अपनी ज़ाती राय किसी के बारे में नहीं देना चाहूँगा, वो मुनासिब नहीं होगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरे मुल्क का सोच के और ख़ास तौर पे लोगों की जानों का सोच के अपने फैसले करने चाहिए। आपने सवाल किया हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट करती है। मेरी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुझे रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब भी एनसीसी हुई है और उसमें अगर कोई गलत मैसेज गया है तो मैंने उसको दुरुस्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेरा एक जुमला बता दें कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है या जो फैसला है उसके खिलाफ किया हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ। फेडरल गवर्नमेंट के जो वज़रा कराची में आके करते रहे और बाकी चीज़ें हैं, वो आप उनसे जवाब लें, मैं नहीं बनना चाहता। आपने जो कहा, सवाल किया, डेफिनेटली हम मॉनिटर कर रहे हैं और जो ज़रूरत पड़ी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ बंदिशें हो गई थी। एनसीसी में एक फ़ैसला हुआ था, सूबों ने उस फैसले के ख़िलाफ़ गए और उन्होंने कुछ मार्केटें और शॉपिंग प्लाजास खोले। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे फिर कहा कि जी बाकी सूबे खोल रहे हैं तो आप क्यों नहीं खोल रहे। हमने उन्हें बताया एनसीसी में ये फैसला हुआ है कि नहीं खोलना है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया आपने खोलना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील हमारी ड्यूटी है। हम दोबारा जो भी लोगों की हेल्थ के हवाले से जो फैसले करने करेंगे। आपका हो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन नाउ यार। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अच्छा आपने सवाल किया, आपको एक सवाल बताऊं। सिंध की हद तक और पूरे पाकिस्तान में ही होगा, मैं मुझे दूसरों को पता नहीं, मैं आई एम श्योर ये होगा, आई एम वेरी श्योर कि यही हो रहा है। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता, उसको हम अगर डेथ अदरवाइज हो, कई डेथ्स ऐसी हुई हैं जो अचानक हुई हैं, बुखार ज़ुकाम, और लेकिन उसका अगर पॉजिटिव टेस्ट नहीं हुआ है, पीसीआर टेस्ट, तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। ये मैं आपको हल्फिया कहूँ, कहें लिख के दूँ, एक एक शख्स जिसकी डेथ हुई है सिंध में ख़ास तौर पे, बाकी में भी होगा, ख़ास तौर पे अगर आप लोगों में से कोई चाहेगा, किसी के बारे में आपको शक है, तो आप मुझे कहिएगा। उस वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। एक भी नहीं है ऐसा, और ये जो लोग कहते हैं वो गलत बात है। कर लो इजाज़त, तुम भी कर लो। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि निकाला जा रहा है, शिबली फराज कहते हैं कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। यहाँ एक बात करते हैं कराची जाके, दूसरी बात करते हैं। ये सवाल आप उनसे पूछ लें जिन्होंने स्टील मिल में खड़े होकर कहा था। आपने सबने देखा होगा कि अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला तो मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ। मजदूर इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो मजदूरों के साथ हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं जिन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था, आपको गवाह किया था मीडिया को, अब पता नहीं मीडिया अपना फ़र्ज़ निभाता है या नहीं, वो मीडिया की मर्ज़ी है। थैंक यू।